Any doubt with the previous topic? No, sir. Everything is clear? Yes, sir. Sir, I wanted to ask. Sir, Anjali, please. sir, after the colors of that, it was a topic. After the colors, we have to write nothing now. After that. Okay. एक्सक्यूज मी सर Yes. सर आपने जो कल वर्कशीट भेजी थी उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे वो स्लाइड थी कल? सर यस कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर दे देंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे। एक बार आज आप चैप्टर पूरा रिवाइज कर लेना, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस देंगे करने के लिए। फिर आपको हो गया सर इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, डोंट वरी। अच्छा, कोई भी आपको अच्छा पहले मुझे ये बताओ, किसी ने ज्वाइन की थी ये जो भी सेमिनार हुआ था 1-2 दिन पहले, वर्कशॉप हुई थी एस्ट्रोनॉमी की? नो सर। No, sir. ठीक है जी। नो सर। अजितेश, यस सर। चलो मुझे एक बार सारा बताओ, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा चैप्टर में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक। ओके सर। बोलो बेटा। Sir, we talked about planets, stars. प्लैनेट्स में हमने क्या कौन कौन से प्लैनेट कर रहे हैं और क्या क्या डिस्क्राइब किया आपने? We talked about the physical features of those planets and about their moons. And we talked about gas bombs. What do you mean by inner planet and outer planet? But I don't know. I forgot. Anyone else? So may I tell? हाँ जी हिमांशु। Sir, Jupiter to planets from Jupiter. No. Inner planets are those planets which are between Sun and the asteroid belt. जो एस्ट्रॉइड बेल्ट और सन के बीच में प्लैनेट्स होंगे उनको हम बोलेंगे इनर प्लैनेट, और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट की दूसरी तरफ प्लैनेट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? आउटर प्लैनेट। ठीक है? ओके सर। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसे लिख लीजिए, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने नहीं लिखी हुई तो ऑल दोस प्लैनेट्स व्हिच आर इन बिटवीन asteroid belt and sun are known as inner, and planets on the other side of asteroid belts are known as outer planet. Am I clear? Sir, we haven't done Neptune and Uranus. We have to do them. मैंने भेजा तो था आपको, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है उसमें आप बताइए मुझे। No sir. हाँ जी, तो beside of this we can also distribute them as a rocky planets and gas giants. कर सकते हैं ना हमने क्लासिफाई? यस सर। दक्ष अरोड़ा, दक्ष, दक्ष, ये कुछ स्लीपिंग सेल्स होते हैं ना, ये कोई जवाब नहीं देते। जोबनप्रीत, कृष्णा वर्मा, यस सर।
Yes, sir. Sir Krishna Verma here. हाँ जी, कृष्णा वर्मा. Uh, Yes. what do you mean by nuclear fusion and nuclear fission? Sir, nuclear fusion means that when a large, when many a large single nuclei forms into and diffuses into many smaller nuclei, it is called nuclear fusion. And when many small nuclei form a large nuclei, it is called nuclear fission. Very good. Nimat Thank Preet you. Singh, Yes, sir. what kind of reaction take place on the surface of sun? Sir, the reaction that hydrogen atoms combine and make helium to release energy. Very good. What do you mean by different phases of moon? Any idea? Sir, may I? हाँ जी. Sir, that when the earth stops the light from the sun, that we portion of moon that we see from earth is known as phases of moon. तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, डिफरेंट फेसेस ऑफ मून. मून हमें जो है वो हमें सिर्फ उसका हाफ पोर्शन विजिबल होता है, फुल पोर्शन विजिबल नहीं होता. कौन बताएगा हमें हम कि फुल पोर्शन विजिबल क्यों नहीं होता? निमत प्रीत, एनी आइडिया? Sir, may I tell? Sir, because it takes moon about the same time to do one revolution that it takes to do one rotation. Sir, may I? हाँ जी हिमांशु. सर, जो हिस्सा मून के सन की तरफ होता है, that we can see. Why? Because it reflect light. ठीक है, जो जो पोर्शन लाइट सन मून का सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो हमें विजिबल होगा, और जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो हमारे पास विजिबल नहीं होगा. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंट फेसेस ऑफ मून. जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे आज के वो होंगे, what we will learn is we will learn about the phases of moon, we will learn about how many moons other planets and do we have, why moon have different phases और उनके नाम क्या क्या. So first is our planet. Our planet has one moon. ठीक है, जिसे हम मून ही कहते हैं. Like Mars has two moons. इनके नाम लिखिए, please write down. ये जो नीचे एग्जांपल लिखी हुई है उसमें लिखिए Mars has two moons and their names are Phobos and Deimos. Deimos है वैसे, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा. सर गूगल पे MOS दिखा रहा है. हाँ कर लो जैसे भी है. Sir, क्या MOS? DEIMOS. DEIMOS. Okay. Deimos.
हो गया बेटा? So the next is Yes, sir. different phases of moon. जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये कौन है, जो सैटेलाइट है हमारा, जो मून है, वो कंटिन्यूटी में क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, और जितना पोर्शन लाइट का वो रिफ्लेक्ट करता है उतना पोर्शन हमें विजिबल रहता है, अदर पोर्शन हमें विजिबल नहीं रहता. सो तो डिफरेंट फेसेस ऑफ मून इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ. ठीक है, तो आपने इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं. ऊपर हेडिंग दीजिए, व्हाट कॉजेस द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून. द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून इज ड्यू टू the moon revolving around the earth and the moon reflecting sunlight towards the earth. Got it? Clear है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो सिर्फ ये 2 चीजें ही आपने एक्सप्लेन करनी है एग्जाम में. देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, तो आपने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपका खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर आपको ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ जाए, फिर आपने क्या करना है, उसमें नंबर ऑफ डेज लिख देने हैं. अच्छा, कितने दिन लगते हैं भाई मून को? 21. 28. 28 पॉइंट समथिंग है. ठीक है, तो साथ में आपने ये फेसेस बना देने हैं, तो वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा. जल्दी से नोट करिए इसे. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. ये हमारे पास है वोकैबुलरी. अब ये जो टर्म्स है ये आपने एज इट इज ही नोट करनी है. ठीक है, 7 टर्म्स हैं. जैसे ऑर्बिट. ऑर्बिट का मतलब क्या है? जितने भी सैटेलाइट हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो वो जिस पाथ में घूमते हैं उस पाथ को हम क्या नाम देंगे? ऑर्बिट. अब अगर कोई सैटेलाइट अपने प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है, तो जिस पाथ पे वो घूम रहा है उसे हम क्या नाम देंगे? ऑर्बिट. उसी तरह से रोटेट. रोटेट मतलब घूमना अपनी स्पिन पे या एक्सिस के ऊपर. वेनिंग. वेनिंग का मतलब क्या है? अपीयर्स टू श्रिंक, कि कोई चीज श्रिंक हो रही है, कम हो रही है. वैक्सिंग, अपीयर टू बी ग्रो, कि वो बढ़ रही है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है बार बार. गिब्बस. स्वेलम, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसको खा रहा है, स्वेलो कर रहा है उसको. क्रिसेंट, लेस देन हाफ मून इज विजिबल. और रिवॉल्व, वो जब वो घूमता है. तो ये 7 के 7 पॉइंट आपने नोट करने हैं. अब ये 7 पॉइंट यूज कहाँ पे होंगे? जब हम डिफरेंट फेसेस ऑफ मून नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे, तब हम उन डिफरेंट फेसेस को नाम देंगे. किसी को वैनिंग, किसी को वैक्सिंग, किसी को क्रिसेंट. तो इन्हीं डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर वो सारे का सारा नाम. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसे एज इट इज ही नोट करना है आपने विद डेफिनेशन. और जब तक आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो यही डेफिनेशन आपको आएगी. चाहे आगे आप जाके एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में कोई काम करो या एरोनॉटिकल में करो, एरोस्पेस में करो, यही टर्म्स आपने यूटिलाइज करनी है जो ग्रेड 8 में पढ़ रहे हो. बस डिफरेंस क्या होगा, उसमें वो टर्म्स एक्सपैंड हो जाएंगी, इसमें ये 2-2 वर्ड की डेफिनेशन. सो प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली सो दैट ये हमें फ्यूचर में भी हेल्प करे. नोट करिए इसे, अच्छे से नोट करना है. चाहे आपको 5 मिनट 10 मिनट लग जाए, कोई भी टर्म इधर उधर नहीं होनी चाहिए.
पार्थ रत्ती, ये कोई टाइम है आने का आपका? ऑब्जर्वर प्लीज नोट करिए इसका टाइम। पार्थ, व्हाई सो लेट? पार्थ रत्ती, यस सर। टाइमिंग क्या है क्लास की? सर नेटवर्क इशू था। तो अच्छा सा नेटवर्क लगवाओ कोई जिसमें इशू ना हो। ओके सर। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. दक्ष, समृद्धि, चंदन प्रीत, निशांत, अस्वी, वंश, नवनीत, अजितेश, Yes, प्रभजोत। sir. Yes, sir. Sir, completed. चलो, इसमें Complete, कोई sir. डाउट तो नहीं? Clear. डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? No, sir. No, sir. चलिए, नो अब ये आ गया सर। मेरे पास डिफरेंट फेसेस ऑफ मून। ठीक है, अब देखो, जहां स्टार्टिंग में ये जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये मेरे पास है फुल मून। गॉट इट? उसके बाद वैनिंग। वैनिंग हमने क्या पढ़ा था? श्रिंक होना। ठीक है, वैनिंग गिबस मतलब कोई चीज उसको स्वेलो कर रही है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वार्टर, कि वो श्रिंक होते होते कितना हमें दिखाई दे रहा है? सिर्फ वो लास्ट क्वार्टर का छोटा सा। देन वैनिंग क्रिसेंट, कि हमें बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है उसका। देन न्यू मून। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं फुल मून से वैनिंग की तरफ, देन लास्ट क्वार्टर की तरफ, देन वैनिंग क्रिसेंट की तरफ, न्यू मून की तरफ, आप देखो कि साइज जो है मून का वो कम हो रहा है बार बार। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, Yes. sir. Yes, हो sir. रहा है। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो फिर से यहाँ पे क्या है मेरे पास? फुल मून, उसके बाद वैनिंग गिबस, देन इज लास्ट लास्ट क्वार्टर, देन इज वैनिंग क्रिसेंट, देन इज न्यू मून। तो हाफ पोर्शन में क्या होगा? इसलिए हर 15 डेज के बाद क्या रहता है? फुल मून रहता है हमारे पास। हाफ क्वार्टर में क्या होगा? हाफ पोर्शन में क्या होगा? फुल मून टू नो मून, देन या न्यू मून। उसके बाद जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद फिर वो वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब क्या पढ़ा अभी? वैक्सिंग का मतलब हमने Growing. Sir, Appears grow to be करना। growing. ग्रो करना। To be growing. हाँ जी, पहले वो श्रिंक कर रहा था, श्रिंक करने के बाद अब वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। देखो, थोड़ा सा पोर्शन आया वैक्सिंग क्रिसेंट में फर्स्ट क्वार्टर में, उससे थोड़ा और पोर्शन ज्यादा आ गया। वैक्सिंग गिबस में और ज्यादा पोर्शन आ गया। उसके बाद फिर से हमें क्या दिखाई देने लग गया? फुल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यस अगर सर। आपको ये टर्म्स क्लियर रहेंगे कि वैनिंग क्या है, क्रिसेंट क्या है, गिबस क्या है, तो आप इजीली इसके अलग अलग फेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन सा फेस हमने किस जगह के ऊपर यूटिलाइज करना। Am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. 5 मिनट लगाइए और जल्दी से ये टर्म्स जो है, ये जो स्क्रीन है आपकी, इसे नोट कर लीजिए। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पीसी के ऊपर है तो आप इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो। ये डायग्राम आपने एग्जाम में भी ऐसे एज इट इज ही बनाना है। वैनिंग गिबस, फुल मून, गिबस, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग क्रिसेंट, न्यू मून, ये सब कुछ आपने एज इट इज ही एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये नीचे जो लिखा है वो भी लिखना है पूरा? बेटा, वो भी लिखना है। ओके सर। हाँ जी, यू हैव 5 मिनट्स ओनली, तो जल्दी से नोट करिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे, डिस्कस करिए। इज देयर एनी डाउट?
नो सर। सर ये वाला जो है ये वाइट पेज पे ही बनाना है, सो बाद में बना सकते हैं ये फ्री टाइम में? हाँ हाँ, आराम से कर लो, इसीलिए मैंने बोला कि चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। आपका कंसेप्ट बढ़िया होना चाहिए, जितना बढ़िया आपका कंसेप्ट होगा उतना अच्छा आप लिखोगे। ठीक है, तो कंसेप्ट की तरफ मेन फोकस किया करो। सर इन फिजिक्स का जो आपने डायग्राम है ये हम प्रिंट कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको टर्म्स याद नहीं रहेंगी। टर्म्स सर कब फिर याद ड्रॉ। रहेंगी आपको? जब आप अपने हाथ से करोगे इसे। ओके सर, सो आई विल ड्रॉ इट। गतिक अग्रवाल, गतिक, please note their name, Gatik Agarwal and Yash Raj. They just entered the class. हाँ जी बेटा, हो गया सबका? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। तो ये लास्ट ईयर किसी ने बनाया था, इसे आप देख सकते हो किस तरह से आप ड्रॉ करना है। अगर रफ कर रहे हो तो किस तरह से आप ड्रॉ करोगे। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ किस तरह से है। ये देखिए, जितने जितने पोर्शन के ऊपर या जितने पोर्शन से मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना पोर्शन ही मून का विजिबल हो रहा है। आप इसे चेक कर सकते हो, देखो दिस इज न्यू मून, न्यू मून से फिर फुल मून, ये न्यू मून, फुल मून। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस, बैनिंग की, वैक्सिंग की, हर एक स्टेजेस पे आ रही। बेटा क्लियर हो रही है स्लाइड आपको? Yes. Yes, sir. अब ये है न्यू मून, नोट करिए इसकी डेफिनेशन और फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए चलो okay. डन बेटा? सर लास्ट No, last one. Last one is left. हाँ जल्दी जल्दी। ये क्लियर हो गया ना? न्यू मून मतलब जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं। Yes. सर डन। So the next part is, अब ये न्यू मून की लोकेशन देखिए, जब बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगी। अब इस इस डायग्राम को अच्छे से समझो। यहाँ पे सन है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये सारी की सारी लाइट को उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, सन की डायरेक्शन में ही।
और अर्थ की डायरेक्शन में कोई भी पोर्शन लाइट का नहीं जा रहा, तो वो हमें क्या दिखाई देगा? सिर्फ डार्क पोर्शन। बेटा चैट बॉक्स में इतना ना लिखा करो, मुझे माइक आप सबके पास है। तो ये हमारे पास है न्यू मून की सिचुएशन, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, तो सारी की सारी लाइट वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगा मून, और हमें हमारे पास कौन सा पोर्शन विजिबल होगा? ओनली डार्क पोर्शन। द नेक्स्ट वन इज waxing crescent. Please write its definition. Not, Done? sir, your voice is not clear. हो गया बेटा? अब इसकी कंडीशन देखिए किस तरह से है वैक्सिंग क्रिसेंट। ये देखो, जब मून होगा एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अर्थ, ये देखिए, ये सन, ये अर्थ। सर अभी लिखा नहीं था वो। नो सर, नहीं लिखा तो हम वापस आ जाते हैं, लिखिए। वैसे मैंने कल स्लाइड भेजी थी आप लोगों को ये। सर स्लाइड है अभी भी सर, पर वो मैंने मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी फिर लिखिए, से। जल्दी से लिखिए। सब पता नहीं था हमने क्या लिखना है तभी। नहीं नहीं, अब अभी तो पता चल गया ना, बाद में तो लिख ही सकते हो। ओके सर। नहीं नहीं, पर अब लिखो, टाइम दे रहा हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा एक दिन हमारा और बढ़ जाएगा चैप्टर में, कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर हो गया। बाकियों को भी करने दो। Sir, done. डन सर। ठीक है, अब देखो एंगल कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। किसके साथ? सन, अर्थ और मून के बीच में। जब एंगल 60 का होगा तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? वैक्सिंग क्रिसेंट की। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट क्वार्टर, नोट करिए इसे। डन बेटा? Sir, last यस सर। line. Yes, sir. जल्दी करिए। यस सर। तो अभी इसका क्या रहेगा? एंगल इज 90 डिग्री। ये देखिए, here is the moon, earth and sun। जब 90 का एंगल बनेगा तो वो हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट इज वैक्सिंग गिबस। जल्दी से नोट करिए। वैक्सिंग गिबस।
सर वो री एंटर किया है, पहले था वो। असवी भी थी पहले, असवी तो थी पहले, गौरव का पता नहीं मुझे। री एंटर हुए हैं ये बच्चे। Yes, sir. जी री एंटर है सर ये। सो द नेक्स्ट वन है वैक्सिंग गिबस। क्लियर हो गया बेटा? ये देखो क्या हो रहा है, स्वेलो कर रहा है, स्वेलो और साथ में श्रिंकिंग, सॉरी गेन कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सर टाइम हो गया, 2 मिनट आगे हो गया। जाना है कहीं? नो सर, सर अब अगली मीटिंग 20 हाँ मिनट जी में है। हिमांशु बोलिए बेटा। सर गलती से हैंड रेज कर दिया। चलो इसका 2-3 पोर्शन रह गए हमारे स्लाइड्स, तो या तो आपने ट्राई करना जो मैंने कल भेजी थी उससे नोट करने की, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इसे दोबारा से रिपीट कर लेंगे, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका ब्रेक टाइम चल रहा है अभी। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. कोई डाउट नहीं है किसी तरह का? नो No, सर। sir. No, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। No, sir. Thank you, sir. हैप्पी वीकेंड। Thank you, sir. sir. टेक केयर। Thank you, sir. सर